بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. معزز ناظرین گرامی، آج ہم حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات لے کر حاضر خدمت ہیں. کیسے آپ علیہ السلام نے یہودیوں کے سب سے بڑے بت بال کو جھوٹا ثابت کیا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے. حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات و واقعات جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا. معزز خواتین و حضرات، حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. آپ علیہ السلام تقریباً 900 قبل از مسیح اردن کے شہر جلاد میں پیدا ہوئے. قرآن کریم اور مستند احادیث میں حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کے حالات تفصیل سے مذکور نہیں ہیں. قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک 2 مقامات پر آیا ہے. ایک سورہ انعام میں کہ جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی بھی مذکور ہے، اور دوسرا سورہ صافات میں جہاں نہایت اختصار کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور واعظ و نصیحت کا ذکر ہے. سورہ صافات کی آیت 123 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے. قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا نام الیاس، جبکہ انجیل یوحنا میں آپ علیہ السلام کا ذکر ایلیا نبی کے نام سے کیا گیا ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا: الیاس بن یاسین بن فخاس بن یازاز بن ہارون علیہ السلام. قرآن و حدیث سے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کب اور کہاں مبعوث ہوئے، لیکن تاریخی اور اسرائیلی روایات اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت الیسع علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے. یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ چکی تھی. ایک حصہ یہودا یا یہودیہ کہلاتا تھا اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا جس کا پایہ تخت سامرا موجودہ نابلس تھا. اس وقت اسرائیل میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام بائبل میں اخیب اور عربی تواریخ و تفاسیر میں عجب یا اخب مذکور ہے. اس کی بیوی ایزبل بال نامی بت کی پرستار تھی، اور اس نے بال کے نام پر ایک بڑی قربانگاہ تعمیر کر کے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر لگا دیا تھا. حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں. تفسیر ابن جریر جلد 23 صفحہ 53. مورخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تاکہ کفر و شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے اور یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں. قابل صد احترام ناظرین، بال بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا. اس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے. روح المعافی جلد 23 صفحہ نمبر 627. یمن اور شام کی عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی. روایات میں ہے کہ بال بت کے پجاری حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، اور آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ کی تھی. سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے، منتیں مانی جاتی، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی. اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا اور خاص خاص مواقع پر انسانوں کی بھیٹ بھی چڑھائی جاتی تھی. عبرانی اور سامی زبانوں میں بال کے معنی آقا، پروردگار، مالک اور سردار کے ہیں. اسی لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بال کہتی تھی. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی بال ہی کی ایک شکل تھا. قرآن کریم میں سورہ الصافات کی آیت نمبر 123 تا 132 میں ارشاد ربانی ہے: اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے. ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے. اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا.
इले यासीन यानी इलियास पर सलाम हो, बिला शुबा हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला देते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम के लोगों से मशहूर शहर बालबक को रुश्द व हिदायत का मरकज बनाया। इसकी बड़ी वजह यह थी कि बाल देवता का बुत उसी शहर में था और ये बुत परस्ती, सितारा परस्ती और कुफ्र व शिर्क का सबसे बड़ा और कदीम मरकज था। उस शहर का नाम बालबक भी उसी बुत बाल के नाम से मंसूब था। चुनांचे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उस कुफ्रिस्तान से वाज़ो नसीहत का आगाज किया। आज बलबक लुबनान का कदीम तरीन शहर है। इसके खंडरात आज भी उसकी अजमत और शान व शौकत के मजर है। सतह समंदर से 1150 मीटर बुलंद ये शहर मलके बिल्कीस को बतौर हके महर दिया गया था और यहाँ कसरे सुलेमान भी था। यूनानियों ने इसे शहर आफ्ताब या मदीना तो शमस का नाम दिया। नीज रोमी अहद में इस शहर की बड़ी अहमियत थी और रोमी हुक्मरान ऑगस्टस ने इसे अपनी नौ आबादी बना लिया था। 1154 ईस्वी यानी 549 हिजरी में नूरुद्दीन जंगी ने इसे फतह किया। 1170 ईस्वी में एक जल्जले की वजह से यह शहर तबाह हो गया, मगर फिर नए सिरे से आबाद हुआ। यही हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का मजार है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात और कौम के साथ उनकी कशमकश की तफसील तफसीर मजरी में अलामा बगवी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर तफासीर में हजरत वहब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह और हजरत काबुल आबार वगैरह के हवाले से बयान की गई है, जो अक्सर इसराइली रिवायत से माखूज है। इन तमाम रिवायात से खुलासे के तौर पर जो कदर मुश्तरक निकलती है, उसे हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने मुआरफ अल कुरान में तहरीर फरमा दिया। वो ये है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने इसराइल के बादशाह अखीअब और उसकी रियाया को बाल नामी बुत की परस्ती से रोका और उन्हें तौहीद की दावत दी, मगर एक दो अफराद के सिवा किसी ने आप अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, बल्कि आप अलैहिस्सलाम को तरह तरह से परेशान करने लगे। यहां तक कि अखीअब और उसकी बीवी एजबेल ने आप अलैहिस्सलाम को शहीद करने के मंसूबे भी बनाए, जिस पर आप अलैहिस्सलाम ने एक दूर उफ्तादा गार में पनाह ली और अरसे दराज तक वहीं मुकीम रहे। बाद अज़ां आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि इसराइल के लोग कहत साली का शिकार हो जाएं, ताकि इस कहत को दूर करने के लिए आप अलैहिस्सलाम उनको मौजज़ात दिखाएं तो शायद वो ईमान ले आए। चुनांचे उन्हें शदीद कहत में मुब्तला कर दिया गया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इसके बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अखीअब से मिले और उससे कहा कि ये अजाब अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से है और अगर तुम अब भी बाज आ जाओ तो ये अजाब दूर हो सकता है। मेरी सच्चाई के इम्तिहान का भी ये बेहतरीन मौका है। तुम कहते हो कि इसराइल में तुम्हारे माबूद बाल के 450 नबी हैं। तुम एक दिन उन सबको मेरे सामने जमा कर लो, वो बाल के नाम पर कुर्बानी पेश करें और मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दूंगा। जिसकी कुर्बानी को आसमानी आग आकर भस्म कर देगी, उसका दीन सच्चा होगा। सब ने इस तजवीज को खुशी खुशी मान लिया। चुनांचे कोहे किरमल के मुकाम पर यह इज्तिमा हुआ। बाल के झूठे नबियों ने अपनी कुर्बानी पेश की और सुबह से दोपहर तक बाल से इल्तिजाएं करते रहे, मगर कोई जवाब ना आया। इसके बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी पेश की। उस पर आसमान से आग नाजिल हुई, जिसने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जलाकर भस्म कर दिया। ये देखकर बहुत से लोग सजदे में गिर गए, क्योंकि उन पर हक वाज़े हो गया था। लेकिन बाल के झूठे नबी अब भी न माने। इसी तरह बादशाह की बीवी एजबेल भी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की बजाय उल्टा उनकी जान की दुश्मन हो गई। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को उसके अज़ाइम का पता चला तो आप अलैहिस्सलाम रूपोश हो गए और कुछ अरसे बाद बनी इसराइल के दूसरे मुल्क यहूदिया में तबलीग शुरू कर दी, क्योंकि रफ्ता रफ्ता बाल परस्ती की वबा वहां भी फैल चुकी थी। वहां के बादशाह ने भी आप अलैहिस्सलाम की बात ना सुनी, यहां तक कि वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की पेशगोई के मुताबिक तबाह बर्बाद हो गया। चंद साल बाद आप अलैहिस्सलाम दोबारा इसराइल तशरीफ लाए और बादशाह को राह रास्त पर लाने की कोशिश की, मगर वो बदस्तूर अपनी बदअमालियों में मुब्तला रहा, यहां तक कि उन्हें बैरूनी हमलों और मोहलिक बीमारियों का शिकार बना दिया गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी को वापस बुला लिया। मुआरफ अल कुरान जिल्द 7 सफ़ा नंबर 470। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, हज़रत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम बादशाह के जुल्म व सितम से तंग आकर एक गार में रहने लगे थे और उन्होंने तकरीबन 10 साल का अरसा रूपोशी में बसर किया। फिर अल्लाह ताला ने उस बादशाह को हलाक कर दिया।
दूसरा बादशाह तख्त नशीन हुआ तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उसके पास तशरीफ ले गए और उसे दावत तौहीद दी, जिस पर एक खल्के अजीम उन पर ईमान ले आई। सिर्फ 10,000 बाकी रह गए जिन्हें कत्ल कर दिया गया। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह मुफस्सिरीन में से एक मुख्तसर गिरोह का कहना है कि इलियास अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है और इन दोनों शख्सियात में कोई फर्क नहीं। बाज हजरात ने यह भी कहा है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम में कोई फर्क नहीं। यहां सवाल यह पैदा होता है कि क्या इलियास अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है? मुहक्किकीन ने इन अकवाल की तरदीद की है। कुरान करीम में भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का इस तरह जुदा जुदा तज़किरा फरमाया है। यही वजह है कि दोनों को एक करार देने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। इसलिए हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तारीख में दोनों को अलग अलग नबी करार दिया है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले नबूवत पर सरफराज हुए, जबकि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम एक इसराइली नबी हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद मबूस हुए। यूं दोनों में सैकड़ों साल का फासला है। चुनाचे तिबरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हजरत यशा अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे और उनकी बासत हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम के बाद हुई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उन अंबियाए कराम में से हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी जाहो हशमत, दौलत और सरवत से बेनियाज होकर बसर की। रहने को मकान बनाया और न खाने पीने की फिक्र रही। मिला तो खा लिया, न मिला तो पानी पर ही गुजारा कर लिया। दिन भर दरसो तबलीग में मसरूफ रहते और शब याद इलाही में गुजारते। जब नींद ज्यादा सताती तो जहां जगह मुयस्सर आती सो रहते। सफरनामा अर्ज़े कुरान में तहरीर है कि वादी सीना में वाक़े जबल तूर पर मकाम इलियास वो जगह है जहां हजरत इलियास अलैहिस्सलाम सामरा से भागकर रुपोश हुए थे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या वफात पा चुके हैं? मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन के दरमियान ये मसला भी ज़ेरे बहस आया। तफसीर मज़री में अलामा बगवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जो तवील रिवायत बयान की गई है उसमें यह भी मज़कूर है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक आतशी घोड़े पर सवार करके आसमान की तरफ उठा लिया गया था और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह जिंदा है। अलामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी इब्ने असाकर रहमतुल्लाह अलैह और हाकिम रहमतुल्लाह अलैह वगैरह के हवाले से कई ऐसी रिवायात नकल की हैं जिनसे मालूम होता है कि वो जिंदा है। काबुल अबार रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि 4 अंबिया अलैहिमुस्सलाम अब तक जिंदा हैं। 2 जमीन पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और 2 आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। यहां तक कि बाज अफराद ने यह भी कहा कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हर साल रमजान के महीने में बैतुल मक़दस में इकट्ठे होते और रोजे रखते हैं। लेकिन हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुहक्किक उलमा ने इन रिवायात को सही करार नहीं दिया। वो इन जैसी रिवायात के बारे में लिखते हैं, ये उन इसराइली रिवायात में से हैं जिनकी ना तस्दीक की जाती है और ना तकज़ीब, बल्कि जाहिर ये है कि इनकी सेहत बईद है। नाज़रीन गिरामी, बाइबल में लिखा है और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। कुरान और हदीस में ऐसी कोई दलील नहीं है जिससे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जिंदगी या आप अलैहिस्सलाम का आसमान पर उठाया जाना साबित होता हो। सिर्फ एक रिवायत मुस्तदरिक हाकिम रहमतुल्लाह अलैह में मिलती है जिसमें मज़कूर है कि तबूक के रास्ते में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, लेकिन मुहद्दिसीन ने इसे मौज़ूए हदीस करार दिया है। बहरहाल हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का जिंदा होना किसी मौतबर इस्लामी रिवायात से साबित नहीं, लिहाजा इस मामले में सलामती की राय यही है कि सकूत इख्तियार किया जाए और इसराइली रिवायात के सिलसिले में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल किया जाए कि ना उनकी तस्दीक करो ना तकसीब। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह नेगे।